how the B2C or in processed, and what all steps are there, how the cancellation in B2B orders, B2C orders work. Then into the last class, we checked out how the B2B module works, and what all things have to be taken care of while creating orders, B2B orders, how and what stages are there to create the B2B orders. Similarly, we also checked out in STN, which is a similar process to the B2B orders. Going forward, I mean, we onto the agenda, we have more or less the these things left, and I'll sort of divide this into two categories. We'll try to cover returns, though we have seen a little bit of returns into the previous sessions as well, but we'll cover both example of one customer return, and the other is RTO. We'll cover both the returns, and then we'll also cover uh, the inventory adjustment which happened from the handheld device, and the inventory adjustment which happened from the web as well. So we'll try to cover this much things today, and tomorrow we shall talk about cycle count, and hopefully we should be in a situation to conclude the masterclass either tomorrow or day after tomorrow, right? So today, before we start talking about the returns, let me request everyone, if any questions are there from the previous classes, please ask them now, so that we are able to move ahead without any doubts or concerns. Great. I think I've got it. So let's move ahead today with returns. See, returns are one of the those areas where maximum leakages happen. If not managed properly as a process, returns are those areas where a lot of losses also happen if claims are not filed properly. Returns are those areas where uh, if not managed properly, you end up putting a lot of good inventory also into the bad inventory, or vice versa. Hence, I always tell people that return management should be a key concern area for any founder, for any warehouse manager, or anybody who is running the show in the e-commerce business. So, you know, uh, for me, the return starts from the time a return has been initiated by the marketplace. For the system, it starts when the return has been received in the warehouse. Let me tell you how do I bifurcate it. So, you dispatched an order, it has been delivered to a customer. You get an email from Amazon or Flipkart, 10 returns have been initiated. So when we say 10 returns have been initiated, that means those returns have been either picked up by the marketplace from the customer, or have been created by the marketplace for the customer. And eventually you get an email that, okay, 10 returns have been delivered to your warehouse. So the moment they say that these 10 returns have been delivered to your warehouse, it becomes mandatory for you to ensure and cross check whether those 10 returns have actually landed up at your warehouse or not. If you are not able to accurately measure that, if you are not able to accurately compute how many returns you have not received, then a marketplace will say, okay, you have a tat of 7 or 10 days, or whatever it is as per the marketplace, to file a claim of the return which you have not received. That is the number one stage of claim. uh, so what people do is they accept the returns, uh, uh, and keep it into their warehouse, and maybe punch those returns into the system, into EasyCom, tomorrow or day after tomorrow. So if you are not punching them same day, you are basically losing out 2 days out of your lost in transit sort of claim which you have to file. Can anybody tell me what is the time period for the returns not received or lost in transit after the marketplace say that you have that the returns have been delivered, maybe for Amazon or Flipkart? What is that? What is that claim window? Ankit ji.
निखिल जी, एम आई ऑडिबल? बिकॉज एक्चुअली आज मैं वेयर हाउस में बैठा हूँ तो थोड़ा शायद यस यू इधर आर ऑडिबल, डिस्टरबेंस है। यस यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। हर एक मार्केट प्लेस का अलग अलग है। इन Amazon अगर वो कहते हैं कि वी हैव डिलीवर्ड दिस पैकेट, और वो पैकेट फिजिकली आपको नहीं मिलता है, बेशक वो ओटीसी रिटर्न हो, बट आफ्टर 14 days यू हैव टू फाइल अ क्लेम विद इन 14 days, सेवन विद टू इन फोर्टीन 14 डेज डेज 7 to 14 days। बहुत से केसेस में वो कहता है कि दिस हैज नॉट बीन डेबिटेड टू योर अकाउंट, तो उसको आपको क्लेम नहीं डालने देगा। देर आर अलग अलग केसेस है। मिंत्रा में 60 to 75 days का है, स्नैपडील में 60 to 90 days का है। सो दीज आर लाइक, वो लोग कह रहे हैं कि वी हैव डिलीवर्ड दीज रिटर्न्स टू यू, बट फिजिकली वो आपको मिला नहीं है, उसकी जगह XYZ कोई और पैकेट मिला हुआ है आपको। वेरी ट्रू, या फिर आपको मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं है, उन्होंने इनिशिएट राइट। कर दिया है और मिला ही नहीं है। हाँ, या उन्होंने अपने सिस्टम के, उनके कोरियर लास्ट माइल वाले ने बोल दिया कि मैंने इनको डिलीवर कर दिया है, बट आपको नहीं मिला है हाँ फिजिकली। हाँ, राइट। Amazon में ठीक होता है, कई बार होता है। मान लीजिए 100 पैकेट लाया, तो 99 पैकेट्स आपके मैच करेंगे, एक पैकेट आपका मैच नहीं करेगा। है। राइट। तो एक हम और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है मैच करने वाली। होता क्या है कि लोग क्या करते हैं कि वेयर हाउस के अंदर जब रिटर्न्स आते हैं तो वो रिटर्न्स, लेट्स से डिवाइस के अंदर उसके या हमारे रिपोर्ट के अंदर जो हमको मेल आया मार्केट प्लेस से, वहां पे दिख रहा है 100 रिटर्न्स आएंगे, तो हम 100 रिटर्न्स गिनती करके उसके मैनिफेस्ट पे साइन करके दे देते हैं। तो अब ये गिनती करना सही तरीका है, या आप लोग AWB मैच करते हैं जो आपकी इंटीमेशन में आया कि आपको ये वाले 100 AWs डिलीवर करे जाएंगे? आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड अंकित जी फ्रॉम यू नहीं, एंड फ्रॉम इसका somebody else इसका also. तरीका, हाँ इसका तरीका बहुत अलग है। मिंत्रा में फिजिकल पीओडी लाता है बंदा, तो हम फिजिकल पीओडी से AWB मैच कर लेते हैं। हम्म। एंड Amazon में आपको प्री इनिशिएटेड मेल आ जाता है, तो प्री इनिशिएटेड मेल को आप कॉपी करते हैं एक्सेल में, क्योंकि उनका फॉर्मेट जो आता है वो एक पेस्टेड फाइल में आता है, तो वहां से आप उसका रिको कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट में मान लीजिए आपको रिटर्न आज मिला है, तो वो रात में 11 बजे या कल सुबह 11 बजे तक आपको रिकंसिलिएशन, रिटर्न रिकंसिलिएशन की फाइल देगा, जिससे आप रीवेरीफाई करेंगे। सबका अलग अलग प्रोसीजर, सबका अलग अलग तरीका है। अजियो में यू विल गेट अ फिजिकल पीओडी, तो आप फिजिकल पीओडी पे मैच कर सकते हैं। हम्म। तो सबका अलग तरीका है। डिफरेंसेस आपके वेयर हाउस के अंदर, डिफरेंसेस कितने होते हैं जो ये उन्होंने रिटर्न रिको की रिपोर्ट दी या उन्होंने एक आपको फिजिकल मैचिंग की पीओडी फ्लिपकार्ट लेकर आए, डिफरेंस? फ्लिपकार्ट हाँ, फ्लिपकार्ट में देर इज नो डिफरेंस। वी हैव ट्राइड एंड टेस्टेड मेनी टाइम्स। ऑन द स्पॉट भी चेक किया है, आफ्टर रिकंसिलिएशन भी चेक किया, वीकली रिकंसिलिएशन भी किया है। फ्लिपकार्ट देर इज नो मिसमैच। द मिसमैचेस कम्स इन केसेस ऑफ Amazon एंड मिंत्रा। मिंत्रा में क्या अमेजन होता में है, वो मिलता है। बोलेगा वी हैव डिलीवर्ड इट टू यू, और आप उसका एक लॉस्ट इन ट्रांजिट का या रिटर्न नॉट रिसीव्ड का जब आप क्लेम डालते हैं, तो विद इन 7 to 10 days वो आपको रिटर्न मिल जाता है। सो वो आपको क्लेम को डिनाई कर देता है। आप अपना जब रिको करते हैं, तो आप धीरे धीरे, मार्केट प्लेस भी समझदार हो गई है, उसे पता चल गया है कि सेलर भी भैया इफ एंड बट लगा के अपना सारा हिसाब किताब मैनेज करके चल रहा है। तो जो हब हम्म। में 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने तक पहले रिटर्न पड़े रहते थे, अब आप देखेंगे तो रिटर्न हब्स क्लियर हो जाते हैं उनके वीकली बेसिस पे, सारे आपको मार्केट सही मिले प्लेसेस में। गलत मिले मटेरियल वो अलग बात है। हाँ से गलत मिलेगा तो विल टेक अ क्लेम। ठीक है, ठीक है। आई थिंक अंकित जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दी प्रोसेस इन डिटेल कि रिटर्न जब आता है तो जो लॉस्ट इन ट्रांजिट या रॉन्ग रिटर्न का क्लेम विंडो क्या है और किस तरीके से आप एक्सेप्ट करके उसको रेको करते हैं। आई लाइक टू गो टू समबडी एल्स ऑल्सो इन द कॉल, जैसे कि कॉटी के अंदर दाइयम आप कैसे करते हैं? सर हम लोग कैसे करते हैं कि रिटर्न्स आते हैं तो उनसे फोन से स्कैन करते हैं वो सारे रिटर्न्स को, फिर गुड बैड में सेलेक्ट करके उसको फिर ठीक है, तो ये रिस्टॉक हो आपको जाते हैं वो ऑलरेडी। जितना मार्केट प्लेस ने कहा कि आपको 100 रिटर्न हमने डिलीवर कर दिए, तो 100 गिनती करते हो या 100 AWB मैच करते हो, कैसे करते हो? वो एक्चुअली जब डिलीवरी पर्सन आते हैं तो वो उनसे क्रॉस चेक कर लेते हैं, वो जो ओटीपी आता है उसमें जैसे कि 50 रिटर्न्स है तो वो मैनुअली सामने से 50 काउंट करके दे देते हैं स्कैन तो करके। आप AWB मैच नहीं करते हो, गिनती कर लेते हो? नहीं नहीं, हाँ गिनती कर लेते हैं। ठीक है, ओके। कासिया फैब्स, आप लोग क्या करते हैं? प्रियंका?
देवेना जी, आप कैसे करते हैं रिटर्न्स का जब आपको रिटर्न्स मिलते हैं वेयर हाउस पे आपको? यस प्रियंका, प्लीज गो अहेड। यूर ऑन म्यूट प्रियंका। Am I okay? Okay. यस। So actually I was asking कि जैसे हमारे यहाँ तो जो रिटर्न्स आते हैं वो हम लोग मार्क कर देते हैं, बट हमारा जो जितना भी मार्केट प्लेस का है वो एक एजेंसी देखता है, तो उन्हीं के थ्रू ही हम लोग करवाते हैं। ओके, तो एजेंसी के पास सारे रिटर्न्स जाते हैं, रिटर्न्स आपके वेयर हाउस आते हैं और उनको डेटा स्कैन करके भेजते हो आप? हाँ, वेयर हाउस पे आते हैं और फिर स्कैन करके भेजते हैं। ठीक है, तो जब आप रिटर्न एक्सेप्ट करते हो तब आप लोग उसको कोई क्रॉस चेकिंग नहीं करते हो, सिर्फ स्कैन करके गिनती करके डेटा एजेंसी को दे देते हो? हाँ हाँ, कि हमारे ठीक है, पास में ये प्रोडक्ट आया है ये वाले पैकेट में। ओके। एंड उसके बाद एजेंसी उसका क्लेम डालना है, सही आया गलत आया, वो अपने मार्केट प्लेस से जाकर वो करते हैं। हाँ, वो लोग देखते हैं। ठीक है जी, काफी आसान कर लिया आपने अपनी लायबिलिटी को। और इस ठीक केस है, में प्रियंका, इस केस में वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये कौन करता है? दिस शुड बी डन एट योर एंड ना, राइट? यस, वेयर हाउस में हमारे जो मतलब जो लोग देखते हैं रिटर्न्स वो लोग करते हैं। So the third party agency is only doing the reconciliation of lost in transit, return not received, and claim ratio. Yes, yes. Okay. अंकित जी, आई थिंक दिस इज अ सिमिलर एग्जांपल व्हाट यू हैड आस्क्ड मी अ फ्यू डेज बैक कि किस तरीके से क्या हो रहा है। तो प्रियंका, एक बात बताइए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं सबसे ये जानना चाहूंगा कि क्लेम अप्रूवल रेशो क्या है? आप लोगों ने एजेंसी से जब काम करवाते हैं या आप लोग खुद उसे मैनेज करते हैं, तो क्लेम एक्सेप्ट, आपने 100 क्लेम फाइल करे तो उसमें से कितने क्लेम मार्केट प्लेस एक्सेप्ट करके आपको पैसा दे देता है या फिर कितने क्लेम रिजेक्ट कर देता है? क्या रेशो है? 70% रहता है, 70 to 80% रहता है अमेजोन का, और फ्लिपकार्ट का तो ऐसा है कि जो एजेंसी है उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो मतलब 90% हमारा हो ही जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जी। एंड ओके, ठीक है, ठीक है। ये दो सवाल मेरे बाकी लोगों से भी हैं। देविना, आप बताएं प्लीज। निस्मा, आप बताएं। ऑनलाइन स्टेलर्स, कासिया फैब्स, हाउ आर यू reconciling what returns you were expecting and how what have been delivered? आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? दूसरी बात, मुझे ये भी बताएं कि आप लोग का क्लेम एक्सेप्टेंस रेशियो कैसा दिखता है आपको? निखिल, like I mentioned, we are not available अभी और कोई मार्केट प्लेस पे, मार्केट प्लेसेस पे नहीं करते हैं आप? अपार्ट ओके, ऑफ शॉपिफाई, तो वो फिर रिकंसिलिएशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है, जितना अपना क्वेश्चन जा ही रहा नहीं है फिर आता है। रिटर्न आता है ठीक बस, है, वरना आपके लिए आसान अदरवाइज। कहानी है। हाँ, बट अभी नहीं होगा ना, अभी तो वी विल बी ऑन मिंत्रा शॉपिंग, ठीक है, देन जैसा अंकित जी ने बोला। you are getting prepped up for that now. Correct, correct. The master classes are very helpful for that. Great, great. So the story starts So when you get for onto let me marketplaces. sorry Nikhil to interrupt you. Let me tell the April to December claim ratio of Red Tape. Myntra, it is 97.88% of approval. Okay. Amazon is 93.62% claims are approved. Flipkart is 89.35. So all the three major portals are almost 90%. approving are all the claims. हम्म। This shows कि टीम थोड़ी मेहनत कर रही है। टीम थोड़ी मेहनत कर रही है। ठीक है, ठीक है। हिना, आपके यहाँ आप रिटर्न्स जब रिसीव करते हैं तो आप कैसे रिसीव करते हैं? क्या प्रोसेस है? कोरियर वाले ने कहा, मार्केट प्लेस ने कहा 100 रिटर्न आपको मिलेंगे, आप कैसे चेक करते हैं? गिनती करते हैं, AWB स्कैन करते हैं, और आपका रेशो क्या है? और रिटर्न्स हम लोग तो ऐसा AWB नंबर वाइज मतलब इन करते हैं वेयर हाउस में जब डिलीवर्ड होता है। रिटर्न ठीक है, प्रोसेस भी AWB नंबर्स के थ्रू ही होता है। AWB नंबर्स जो भी पॉसिबिलिटीज हो हमारे पास रिटर्न मार्क करने के लिए, हम उसे करते हैं सिस्टम में। ठीक है। आपका क्लेम एक्सेप्टेंस रेशो क्या है? अगर आपने 100 क्लेम फाइल करे तो कितने एक्सेप्ट हो जाते हैं फॉर मार्केट प्लेस के लिए? मार्केट प्लेस के लिए? तो जिसकी क्लेम का जो है हमारे पास मोस्टली हम लोग का मिंत्रा का एक्सेप्ट नहीं होता है, बिकॉज वो VMS वाला सिस्टम चाहिए हमें उसके लिए, जिसकी रॉन्ग रिटर्न रिसीव होता है हमें, तो लोग अप्रूव नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली हमारे अप्रूव नहीं हो रहे, बट जब VMS नहीं था तो लोग अप्रूव करते थे।
जैसे केसेस बहुत कम आते, बहुत रेयरली होते हैं हमारे पास, मतलब मंथ में 1 and 2 ऐसे सम केसेस होते हैं। मेरे और अमेजोन से हमें रियम्बर्समेंट हो जाते हैं एसपीएफ क्लेमिंग के। तो मिंत्रा में वीएमएस अगर प्रॉपर नहीं है तो आपको इशू आते हैं। हाँ, तो इंस्टॉलेशन करा रहे हम वेयर हाउस पे हमारे फॉर मिंत्रा ऐसा। Devina, I think this is would be an interesting input for you कि VMS कैसे रिटर्न्स, वीडियोग्राफी कैसे हो रही है, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम लगता है, तो अगर वो प्रॉपरली नहीं लगता है तो क्लेम्स अप्रूव करना, फोटोग्राफ अगर अच्छी नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्लेम्स अप्रूव करना में मार्केट प्लेस जो है बहुत प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ग्रेट, आगे चलते हैं। सो टुडे वील talk about, like we understood, returns is a very complex process, एंड टाइम से अगर उसके अंदर डेटा पंच नहीं करा गया, सिस्टम के अंदर सही डेटा सही समय पे पंच नहीं करा गया, आपके लड़के ने कहते ओह ये तो बैड था बट मैंने गुड मार्क कर दिया, या फिर ओह ये तो गुड था बट मैंने गलती से बैड मार्क कर दिया, या मैंने ठीक खोला नहीं पैकेट, या मैंने वीडियो अच्छे से नहीं बनाई, या मैंने वो सारी चीजें नहीं करी, तो इस केस में होता क्या है कि आपका क्लेम रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपके रिटर्न्स जो है लॉस सेंटर बन जाएंगे प्रॉफिट सेंटर की जगह। वो तो वैसे ही पहले ही लॉस सेंटर रहता है क्योंकि आप तो फॉरवर्ड का पैसा, रिटर्न का पैसा दोनों देते हो, बट अगेन यू विल एंड अप लूजिंग मोर मनी देन व्हाट you had built into your unit economics. So from the my objective of having discussion was to give you guys an collaborative idea of how returns are being received and claim ratio किस तरीके के आपस में हो रहा है, हमारा हो रहा है पर कंपनी का। एंड अब हम जो इजी काम के अंदर प्रोसेस है रिटर्न रिसीव करने का, रिटर्न पंच करने का और रिटर्न पुट अवे करने का, भले वो आरटीओ भले करो रिटर्न हो, हम उसको देखेंगे। शाहरुख, ओवर टू यू प्लीज, ये दोनों प्रोसेसेस एक बार डिटेल में समझाइए। थैंक यू सर। मैं एक बारी अपना मोबाइल ऐप शेयर कर देता हूँ और उसमें मैं आपको ना कुछ रिटर्न्स पंच करके दिखाता हूँ तो वहाँ पे कैसे। गिव मी अ सेकंड। ओके, सो ये इजीकॉम का ऐप है और अभी मेरे पास वेयर हाउस में मेरे पास 2 रिटर्न्स है। मैं आपको वो मार्क करके दिखाता हूँ कि कैसे इजीकॉम में मार्क कर सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हमारे पास जो अपने रिटर्न्स मार्क किए थे B2C, वो सेम प्रोसेस ही है। पहले हम पेंडिंग रिटर्न्स में जाएंगे और यहाँ पे हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे कि मेरे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फॉरवर्ड AWB नंबर। मैं इस AWB नंबर को स्कैन करूंगा यहाँ पे। ओके, तो इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि ये SKU है, इसका ये सीरियल नंबर है। और अब मैं इसमें ये मेरे से पूछ रहा है सिलेक्ट और स्कैन द सीरियल नंबर। तो इस पैकेट को मैं ओपन करूंगा, इसमें जो भी मेरे पास आइटम रिसीव हुआ है उसका सीरियल नंबर यहाँ पे स्कैन करेंगे। ठीक है, अभी ये मेरे को पूछ रहा है कि ये आपका आइटम गुड है, डैमेज है या फ्रॉड है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इमेजेस भी चेक कर सकते हो QC चेक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे इसका स्टेटस सिलेक्ट कर सकते हो। अभी ये आइटम गुड है तो मैं इसको गुड पे क्लिक करूंगा एंड कंटिन्यू। और यहाँ पे मैं कोई एक रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा जो भी मेरा रीजन था। तो अभी ये मेरे पास RTO है तो मैं RTO वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। इनकेस अगर आपको कोई रिमार्क्स भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे रिमार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है नीचे स्लाइड राइट टू रिटर्न स्कैन्ड आइटम। मैंने इसको स्कैन कर दिया और ये आइटम रिटर्न मार्क हो गया है। अब शाहरुख, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रिटर्न मोबाइल से मार्क करने में और वेब से मार्क करने में क्या फर्क है और क्या यूज करना बेटर है? तो अगर हम मोबाइल से रिटर्न मार्क करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक तो मतलब हम हैंडहेल्ड टर्मिनल भी यूज कर सकते हैं, उसमें स्कैनिंग भी फास्ट आती है और आप यहाँ पे इमेजेस भी ले सकते हैं अगर इनकेस वो डैमेज या फिर फ्रॉड आइटम है। ठीक है, अगर आपके पास अभी VMS टूल नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं वो इमेजेस यहाँ
यहाँ पे कैप्चर करके इसमें सेव करूंगा तो मेरे को रिटर्न रिपोर्ट में वो मुझे इमेजेस मिल जाएंगी जो मुझे फर्दर क्लेम करने में हेल्प मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आती है कि मेरे पास रिटर्न आया, ये हम अभी रिटर्न टू आरटीओ वाला केस देख रहे हैं, राइट? करेक्ट। तो कस्टमर रिटर्न के अंदर एक बार एक इम्पॉर्टेंट केस होता है कि मेरे पास कस्टमर ने मुझे पैकेट वापसी, आइटम वापसी भेजा एंड उसके अंदर सीरियल नंबर का स्टिकर गायब है। तो सीरियल नंबर का स्टिकर ही नहीं है उसके ऊपर। उस केस में भी ये भी केस हमको कवर करना पड़ेगा कस्टमर रिटर्न के अंदर कि किस तरीके से ये चीजें हम मैनेज करेंगे दैट द सीरियल नंबर इज मिसिंग, व्हाट इज द राइट वे टू एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस इफ द सीरियल नंबर इज मिसिंग। ठीक है, प्लीज टेक इट। ओके, तो मैं एक बारी वेब वाला इंटरफेस ओपन कर लेता हूँ और उसमें मैं शेयर करता हूँ कि अगर इनकेस अगर आपका सीरियल नंबर मिसिंग है तो आप उसको वापस कैसे रिप्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं वेब से आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे रिटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। तो इस स्क्रीन पे मैं यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, क्रिएट गेट एंट्री। ओके, तो मैं यहाँ पे एक गेट एंट्री क्रिएट करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे 3 ऑप्शंस पूछ रहा है, B2B गेट एंट्री, B2C गेट एंट्री एंड इनवर्ट गेट एंट्री। तो अभी बाकी ऑप्शन कमिंग सून है, तो मैं यहाँ पे B2C गेट एंट्री पे। आई थिंक यहाँ पे हमको शाहरुख लेटस ये जो B2C गेट एंट्री है रिटर्न्स के अंदर, लेटस टच बेस कि ये क्या है, किस तरीके से है। देखिए जो स्टैंडर्ड रिटर्न प्रोसेस, जो स्टैंडर्ड रिटर्न प्रोसेस है उसके अंदर यू डायरेक्टली क्रिएट अ रिटर्न इनटू EasyCom एंड मार्केट डू अ QC एंड ऑल। बट होता क्या है कि when the returns are received at my gate, there would be gap between मेरे गेट पे कब रिसीव हुआ और मैंने इसका पंच कब करा सिस्टम के अंदर। तो आपके गेट पर क्या रिटर्न्स रिसीव हुए आप किसी एक्सेल के अंदर स्कैन करके करते होंगे उसे, जब आप रिटर्न का रेको कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपको मार्केट प्लेस ने क्या रिटर्न्स कहे थे और आपको क्या मिले हैं। तो जब आप यहाँ पर स्कैन कर रहे हैं, गेट एंट्री बना रहे हैं, आप सिंपली कह रहे हैं कि जो मेरे को गेट पर जो भी पैकेट जिस भी फॉर्म में जिस भी AWB के साथ रिसीव हुआ, आई एम स्कैनिंग इट irrespective of what has been received or what has been marked as delivered by the marketplace. सो यहाँ पे हम उसको रिसीव करेंगे और उसके बाद में एक हमारी तरफ से POD निकल आएगा कि हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले हैं। आप एक्सेल फॉर्म में ले लीजिए, उसको PDF फॉर्म में ले लीजिए, उसके बाद आपको चेक करना है कि मार्केट प्लेस ने क्या कहा और आपको क्या मिला। जैसे अंकित जी ने बताया था मैच करते होते हैं। तो यहाँ पर आपने सिस्टम में एक रिटर्न गेट एंट्री बना दी कि मुझे ये मटेरियल मेरे गेट पे, ये रिटर्न मेरे गेट पे मुझे मिल गए हैं। अब उसको आगे ले जाके हम जो है रिटर्न पंच करेंगे विच वुड बी अ सेकेंड स्टेप। तो ये नया रिटर्न्स वाला मॉड्यूल है जहां पर रिटर्न्स की गेट एंट्री आप गेट पर ही कर देंगे। शाहरुख प्लीज। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे मेरे यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है, जैसे गेट एंट्री मतलब आपके कौन से वेयरहाउस के कौन से गेट पर आपको रिटर्न रिसीव हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 12 ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे कैरियर में आपको कौन से कैरियर के थ्रू रिसीव हुआ है, लाइक मुझे ई कार्ड से रिसीव हुआ है, मैं यहाँ पे ई कार्ड ऐड करके इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब ये मेरे को पूछ रहा है कि आपके पास कोई भी, यहाँ पे 2 ऑप्शन, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, ऑर्डर नंबर, फॉरवर्ड डिटेल में, रिवर्स नंबर। अगर आपको नहीं पता कि आपके ऊपर पैकेट के ऊपर आपके पास क्या डिटेल्स है तो आप एनी करके यहाँ पे स्कैन कर सकते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको फैच करके उसको रिस्पेक्टिव फील्ड में सेव कर देगा। सो हीना, यहाँ पर एक दिन आप कह रहे थे कि हमको सिलेक्ट करना पड़ता है कौन सा ऑर्डर आईडी है, AWB है या क्या है। ये वाली जो स्क्रीन हाँ है यहाँ पर आप किसी भी को स्कैन करके आप अपनी गेट एंट्री बना रहे हैं। आप रिटर्न पंच नहीं कर रहे हैं, अभी आप अपनी गेट एंट्री बना रहे हैं यहाँ पर कि हाँ मुझे ये रिटर्न्स मिल गए हैं। बट निखिल, जो हमारी वेयरहाउस टीम है ना, वो हमें एक्सेल फाइल में सारे रिटर्न्स की एंट्री देते हैं। तो ये जो वो वेयरहाउस वाली टीम एक्सेल फाइल में सारे रिटर्न्स की डेटा देता है, ये उनके लिए है ये स्क्रीन। वो एक्सेल में भी कहीं हम्म स्कैन करते होंगे ना। हम्म। तो एक्सेल में स्कैन करने की जगह वो सिस्टम में स्कैन करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो डेटा मिल जाएगा, आपको लेने की और उनको देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
अच्छा, हम मार्केट प्लेस के लिए अलग अलग बनेगा फिर जैसे कि हर वो कुरियर के लिए अलग अलग? कोरियर और मार्केट प्लेस दोनों के वहाँ फैक्टर थे जब हम ये गेट एंट्री बना रहे थे। हम्म, शाहरुख। ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, मैं कंप्लीट स्कैन विद एंड स्टार्ट पीओडी वैलिडेशन कर सकता हूँ एंड कंप्लीट स्कैन विदाउट वैलिडेशन। तो होता यह है कि अगर कोई जो मार्केट प्लेस अगर आपको पीओडी नहीं देता है तो आप उसको कंप्लीट स्कैन विदाउट पीओडी वैलिडेशन पे क्लिक करके आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट स्कैन विदाउट पीओडी वैलिडेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक एक्नॉलेज करके उसको, तो सिस्टम आपको एक रिटर्न मैनिफेस्ट दे देगा, जो मैनिफेस्ट आपका डाउनलोड भी हो गया है यहाँ पर। ये रिटर्न मैनिफेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो मैंने अभी रिटर्न गेट एंट्री में ऐड करा है, अब मैं इसका क्यूसी करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो स्टार्ट क्यूसी करने के लिए मेरे को यहाँ पे पता होना चाहिए मेरा गेट एंट्री आईडी क्या है। मैं स्टार्ट क्यूसी पे जाऊंगा। गेट एंट्री आईडी वही है जो आपने गेट एंट्री के ऊपर सारा का सारा स्कैन करा था। अब जैसे हिना ने बताया उनकी टीम उनको एक्सेल देती है, तो एक्सेल की जगह गेट एंट्री आईडी मिलेगी कि ये सामान लीजिए, ये वाले रिटर्न इस गेट एंट्री आईडी के हैं, अब आप आगे अपने रिटर्न्स पंच कीजिए। तो यहाँ पे मैंने गेट एंट्री आईडी डाला, अब मेरे को बोल रहा है कि आपने जो पैकेट जो आपने गेट एंट्री पे स्कैन किया था उसको आप यहाँ पे स्कैन कीजिए। ओके, अब ये मेरे पास खुल गया है। अब कंसिडर कीजिए मेरे पास जो पैकेट है उस पे सीरियल नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या स्कैन करूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है शो अवेलेबल सीरियल। तो जो भी इस रिटर्न्स के अंदर जो भी पैकेट के ऊपर जो सीरियल आपने लगा के भेजा था वो सिस्टम यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो मेरे पास अब मेरे को यहाँ से मेरा सीरियल नंबर मुझे पता चल गया। अब मान लीजिए आपको ये वापस आपका मटेरियल भी गुड है, आपका सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन आपको सीरियल नंबर लगा के मटेरियल इन्वर्ट करना है क्योंकि ये पुट अवे में भी काम आएगा। पुट अवे करते टाइम मुझे सीरियल नंबर चाहिए होता है, तो मैं यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा और ये कमांड चली जाएगी प्रिंटर पे और एक आपका सीरियल नंबर प्रिंट हो जाएगा। किसी को इस स्टेप में डाउट है? मेरा डाउट है एक जो बाकी लोग पूछ नहीं रहे, बट मैं बाकी लोग के बिहाफ पे पूछता हूँ और कोशिश करूंगा खुद ही जवाब भी दे दूं। आप बोलेंगे जी रिटर्न्स आपने जो है मोबाइल के थ्रू बताया या वेब के थ्रू भी बता रहे हैं। देखिए, रिटर्न्स जो आरटीओज हैं आ, वो आप मोबाइल के थ्रू कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारा जो हमने प्रोडक्ट भेजा था वो एज इट इज वापसी आ रहा है, कोरियर रिटर्न हो गया। बट जो कस्टमर रिटर्न है वहां पर हमारे कंटेंट पैकेट के चेंज हो रहे हैं, तो उसको खोलना जरूरी है, उसकी कंडीशन अलग हो सकती है। आप वीएमएस के थ्रू उसको रिकॉर्ड भी करेंगे, हो सकता है सीरियल नंबर भी गायब हो उसका, तो उस केस के अंदर उसका सीरियल नंबर प्रिंट करना जरूरी हो जाता है। आरटीओ में भी रॉन्ग प्रोडक्ट आते हैं सर। अच्छा, इसको भी डिस्कस करते हैं एक बार। तो अब सीरियल नंबर प्रिंट करने का ऑप्शन मैं मोबाइल में देना एक बहुत मुश्किल काम है, because the printers work with computers and otherwise we will have to use uh, what we call them as portable Bluetooth printers with the handle terminals, which again is an added cost. So people say I don't want to have additional portable printers and I'll use the printer which is into the computer. So that is why this return module for printing serial numbers and doing this is also available into a new format to the web as well. Now इसमें आपने कहा रिटर्न में भी रॉन्ग प्रोडक्ट आते हैं, तो वो तो सारा का सारा पैकेट ही गलत होता होगा ना, ऐसा ही है ना जी? नहीं समा? सर पैकेट पैकेट गलत होता होगा मतलब मैं समझी नहीं। मतलब कि you sent an order with your item, but what you have got back is not your item at all, but some other product. हाँ जी करेक्ट, वो होता है ना? सो इस केस में पैकेट गलत हो गया, प्रोडक्ट गलत हो गया। हाँ जी निसमा, प्लीज आप बताइए, आप कैसे कह रहे हैं, समझाइए केस अपना। सर
जो पैकेट भेजा था सेम टू सेम पैकेट वैसा ही आया, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट मिला था वो रॉन्ग था। तो आरटीओ के केस में भी होता है ऐसा? हाँ, आरटीओ के केस में हाँ सर। जी। ओके। और एक केस नहीं सर, कम से कम 8-10 केस हो चुके हैं। मतलब आपका इनफैक्ट लेबल कभी कभी जी निखिल जी, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आरटीओ वापस आया है विथ आर प्रोडक्ट का टैग जिसमें हम बारकोड चिपकाते हैं, तो आइटम ही अलग है। मतलब मे बी वी हैव सेंट पैंट्स एंड वी हैव गॉट बैक अ कैप that doesn't belong to the company, but the hand tag is there with the barcode and everything. So it's not a customer return, it's a courier return, and during the return transit it has been tampered with, is what the Correct. case is? Right. Okay. 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 ठीक है जी, ठीक है। अंकित जी, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन टू दिस? आपके यहाँ भी आरटीओ में गलत आइटम मिलता है या कैसे, क्या है? अंकित धनकर जी, इधर? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। शाहरुख, प्लीज प्लीज टेक अस अहेड। तो इसमें ना, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर रॉन्ग पैकेट आरटीओ में रिसीव होता है ना, तो अगर आपकी पैकेट की कंडीशन सही नहीं है, मतलब वो टेप लगाया हुआ है या फिर फटा हुआ है, उस केस में तो आप मतलब जो भी वो पीओडी आपके जो साइन करके लेके जाता है, उसमें आप लिख सकते हो कि ये मुझे टेम्पर्ड रिसीव हुआ है, और उसका इमेज लेके आप क्लेम भी रेज कर सकते हैं। Okay, makes sense. ओके, तो अभी ये स्क्रीन पे जो मुझे सीरियल नंबर दिख रहा है, तो मैंने इसको रीप्रिंट कर लिया है। अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है, उस प्रोडक्ट के ऊपर वापस लगा के उसका वापस क्यूसी करके मैं उसको यहाँ पे स्कैन करता हूँ। ठीक है, सो अभी इस प्रोडक्ट की इमेज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे अभी जो आप करंट जो प्रोसेस रिटर्न मार्क कर रहे हो उसमें इमेज छोटी आती है, और यहाँ पे आपको पूरी इमेज, फुल इमेज यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो आपका आइटम है, इनकेस अगर वो डैमेज है या फ्रॉड है, तो आप यहाँ से स्टेटस उसका सिलेक्ट कर सकते हो। इनकेस ये ओके है तो डायरेक्टली इसको क्यूसी पास, एंड इसको यहाँ पे अगर ये कंप्लीट क्यूसी वाला बटन तभी इनेबल होगा जब गेट एंट्री के आप सारे रिटर्न्स मार्क कर लेंगे। उससे पहले ये आप बटन क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी मेरी गेट एंट्री में एक ही आइटम था, इसलिए बटन इनेबल है। तो मैं जैसे इसको यहाँ पे कंप्लीट क्यूसी करूंगा, तो ये गेट एंट्री इसकी क्लोज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जो मैंने अभी रिटर्न्स मार्क करे हैं, इनका हम पुट अवे करेंगे। ये हमें मतलब बिन में जाके इसको वापस सब पुट अवे करेंगे। ठीक है, तो मैं वापस से मोबाइल ऐप की स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ये पुट अवे में जाऊंगा और यहाँ पे रिटर्न्स पुट अवे में जाऊंगा। ठीक है, अभी ये मेरे को बोल रहा है स्कैन बिन, तो मैं एक बिन के ऊपर जाता हूँ, पुट अवे आइटम्स। यहाँ पे लेट सपोज मैं एक बिन स्कैन करता हूँ, ये मेरी बिन स्कैन हो गई। अब ये बोल रहा है मेरे को स्कैन द सीरियल नंबर, तो मैंने यहाँ पे एक सीरियल नंबर स्कैन करा, तो ये पुटअवे इसका डन सक्सेसफुली हो गया। तो इसको मैं उसी दिन में प्लेस कर देता हूँ। ऐसे ही मैं दूसरा स्कैन करता हूँ, इसका भी पुटअवे हो गया, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे डन का जो बटन है उस पर क्लिक कर दूँ तो मेरा पुटअवे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब भी आप रिटर्न मार्क करोगे, तो आपने जो भी अपने बिन मास्टर में जो बिन क्रिएट किया हुआ है, वहां पे आप इसको पुट अवे कर सकते हो, और इन्वेंट्री उसकी वहां पे पुट अवे करते ही लाइव हो जाएगी। आई थिंक सिमिलर तरीके से हमने जब बैड जोन भी देखी थी, अगर कोई आपका रिटर्न रिपेयरेबल है या रिपेयर जोन में जाना है या डैमेज डिस्कार्ड जोन में जाना है, तो आप पुट अवे उनका भी इसी तरीके से करेंगे रिटर्न का, व्हेन इट गोज टू योर बैड जोन्स। सो द पुट अवे
is same for your RTO, courier return, or whatever it is. But I think बट आई एम नेगेटेड टुडे दैट यू सेइंग आरटीओ के अंदर भी आपको पैकेट गड़बड़ मिलते हैं, तो आपका दोनों केसेस में ही आपके रिटर्न पंचिंग का प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर है. सैग्रीगेशन किसी किसी केसेस में हो सकता है, किसी किसी कंपनी यूज केसेस में, प्रोडक्ट यूज, ब्रांड यूज केसेस में. बट आई थिंक व्हाट वी डिस्कस टुडे, I think the process would remain similar, or the on ground process would remain similar for RTOs and customer returns as well. Any questions, guys, which we could help at this moment? सर एक चीज समझ में नहीं आया, अगर आरटीओ हम रिसीव करते हैं तो जैसे कि हमने आपको बताया ना, कभी कभी होता है कि पैकेट हमारा ही है ऑब्वियसली, मतलब हमारा ही कंपनी का आउटर पैकेजिंग है, इनसाइड पैकेजिंग इज ऑल्सो आवर कंपनी, बट वो खोल के जब हम प्रोडक्ट को वापस रखने जाते हैं तब हम देखते हैं कि नहीं, ये तो प्रोडक्ट ही अलग है या प्रोडक्ट टैम्पर्ड विथ है. तो उस सिचुएशन में आरटीओ में भी क्यूसी होता है ना, बिफोर पुट अवे. राइट. सो जब शाहरुख स्क्रीन के ऊपर स्कैन कर रहा था तो स्क्रीन ने पूछा उसे वेदर दिस इन्वेंटरी इज गुड और बैड और रिपेयर और डैमेज. उसी समय हम सॉर्ट कर सकते हैं, उसी समय करना है उसको. अच्छा ठीक ठीक. एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ग्रेट. तो शाहरुख आगे चलते हैं. हाउ मच टाइम वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. सो लेट्स मूव अहेड टू फ्रॉम रिटर्न्स टू I think we could now move ahead to the intra warehouse movements. जो मेरी warehouse के अंदर movements होती हैं, सिर्फ बिन टू बिन ट्रांसफर जो है वो मोबाइल टर्मिनल से होता है, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वेब से होती हैं. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग शाहरुख. यस. ठीक है, तो आप एक एक करके सारे टाइप की एडजस्टमेंट्स का यूज केस क्या है और वो सारी रिटर्न्स के एडजस्टमेंट्स का केस समझा दीजिए कि क्यों रिटर्न्स के एडजस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं. तो इजी कॉम में जो आपका इन्वेंट्री एडजस्टमेंट होता है वो यहाँ पे इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री एडजस्टमेंट करके ऑप्शन है, यहाँ पर है. ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड जो हैमबर्गर बटन है, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है. मैं बल्क एक्सेल से भी कर सकता हूँ और 1 by 1 भी कर सकता हूँ. तो मैं 1 by 1 वाले मेथड पे क्लिक कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के एडजस्टमेंट यहाँ पर मुझे सिस्टम प्रोवाइड कराता है. फर्स्ट है रिटर्नेबल, सेकंड है रिटर्न टू वेंडर और थर्ड है इन हाउस एडजस्टमेंट. तो ये रिटर्नेबल जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका एक आउटबाउंड गेट पास क्रिएट कर देता है इनकेस आपका मटेरियल किसी पर्पस के लिए सिस्टम से आउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे रिटर्नेबल गेट पास क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न टू वेंडर. अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक मटेरियल ऐसा है जो आपको बाद में पता चला कि मतलब ये डेड स्टॉक है, आपको ये वेंडर को रिटर्न करना है, तो आप यहाँ पे आरटीवी इसको क्रिएट कर सकते हो. मतलब उस वेंडर सेलेक्ट करा यहाँ पे और उसके अगेंस्ट सीरियल नंबर स्कैन करके उसको रिटर्न टू वेंडर मार्क कर सकते हो. तो ये जब आप आरटीवी मार्क करोगे टर्मिनल स्टेटस होता है, उसके बाद वो इन्वेंट्री उसकी आप इनपुट नहीं कर सकते, मतलब उसका स्टेटस आप वापस से चेंज नहीं कर सकते. थर्ड आता है इन हाउस एडजस्टमेंट. इन हाउस एडजस्टमेंट में भी हमारे पास दो एडजस्टमेंट होते हैं. एक होता है स्टेटस टू स्टेटस ट्रांसफर एंड सेकंड होता है बिन टू बिन ट्रांसफर. तो स्टेटस टू स्टेटस ट्रांसफर हमारा यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई अवेलेबल मटेरियल है बट आपको उसको पता चला कि इसका मुझे ये ऑलरेडी सोल्ड मार्क हो चुका है या फिर मेरे पास वेयरहाउस में अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको सोल्ड, डिस्कार्ड या फिर डैमेज और रिपेयर उसके अकॉर्डिंगली उसका मैं स्टेटस अपडेट कर सकता हूँ. सेकंड आता है बिन टू बिन ट्रांसफर. बिन टू बिन ट्रांसफर हम तब करते हैं खाली करके किसी दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर मैं उसके. तो मैं यहाँ पे आपको 1 by 1 यहाँ पे दिखा देता हूँ. जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिटर्नेबल गेट पास बनाया और यहाँ पे मैंने एक वेंडर सेलेक्ट किया, उसको सेव किया. यहाँ पे दो ऑप्शन रिटर्न एंड ट्रांसफर है, ये टोटली इंटरनल पर्पस के लिए. अगर आप जो भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप ऐड करोगे वो आपको आउटबाउंड गेट पास होगा. यहाँ पे एक ये बैच क्रिएट हो गया है. फिर मैं यहाँ पे जो भी सीरियल नंबर मैं एंटर करूंगा तो उसका यहाँ पे वो
रिटर्नेबल गेट पास में वो ऐड होगा। ओके, सिमिलर में एक और एडजस्टमेंट टीवी, इसमें भी सेम, आप एक वेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसका एक बैच करेंगे और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, सेम वही प्रोसेस, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट यहाँ पे आरटीवी मार्क कर पाओगे। ठीक है, थर्ड पर आते हैं हमारे पास यहाँ पे इन हाउस एडजस्टमेंट। यहाँ पे हम यूज करते हैं स्टेटस टू स्टेटस ट्रांसफर। यहाँ पे आपको वेंडर सेलेक्ट नहीं करने देगा क्योंकि ये इन हाउस एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे हो रहा है। मैं आपको सेव करूंगा। ठीक है, एक स्टेटस में आपको यहाँ पे मूव करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक यहाँ पे सीरियल नंबर है, उसको मैंने स्कैन किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसका स्टेटस फैच कर लिया। ये अवेलेबल स्टेटस में है, ये इस वाली बिल में रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास न्यू स्टेटस में इसको मुझे क्या देना है, लेट सपोज ये मुझे इसका स्टेटस यहाँ पे रिपेयर करना है, रिपेयर मार्क करना है, तो मैं यहाँ पे रिपेयर सेलेक्ट करूंगा, उस इस टिक बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा उसका स्टेटस रिपेयर हो जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो ये मेरा स्टेटस अवेलेबल टू रिपेयर हो गया। अगर इनकेस मैं इसको दोबारा भी स्कैन करता हूँ तो यहाँ पे ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको रिपेयर स्टेटस दिखा रहा है। अभी तक इस एडजस्टमेंट वाले प्रोसेस में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पे एक लास्ट एडजस्टमेंट टाइप रह गया है, बिन टू बिन ट्रांसफर। तो मैं ये आपको एक मोबाइल ऐप से परफॉर्म करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पे एक मैनुअल एडजस्टमेंट क्रिएट करता हूँ। बेसिकली जो एडजस्टमेंट का बैच है वो वेब से क्रिएट होगा, देन आप मोबाइल ऐप पे जाके इन हाउस एडजस्टमेंट कर पाएंगे, बिन टू बिन ट्रांसफर कर पाएंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब मैं आपको एक बार मोबाइल ऐप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें देखिए यहाँ पे 334 करके कोड दिखा रहा है, ये मेरे को मोबाइल ऐप में भी शो होगी। ठीक है, यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आएगा बिन टू बिन ट्रांसफर। यहाँ पे वो जो मैंने बैच क्रिएट करा था वो मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। मैं इस बैच आईडी के ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरे को पूछ रहा है कि आप स्कैन द करंट ओल्ड बिन, मतलब जिस आइटम, जो बिन में आइटम रखा हुआ है पहले उसको स्कैन कीजिए और देन यहाँ पे एक बिन स्कैन हो गया। अब मेरे को बोल रहा है स्कैन द न्यू बिन, मतलब जिस बिन से जिस बिन में मुझे ट्रांसफर करना है वो मैं यहाँ पे स्कैन करूँ। एक्चुअली मोबाइल स्कैन नहीं ले रहा तो मैं एक बार यहाँ पे बिन को मैनुअली टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मेरे को बोल रहा है स्कैन द सीरियल नंबर, तो मैं यहाँ पे एक सीरियल नंबर लेता हूँ और उसको स्कैन कर देता हूँ और ये स्कैन हो गया। तो अब इसने इस जो मैंने सीरियल नंबर स्कैन करा इसने इसका बिन टू बिन ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया। अगर आपके पास और सीरियल नंबर है जो ट्रांसफर करने हैं तो उसको भी स्कैन कर सकते हो, नहीं तो नीचे नो मोर सीरियल टू स्कैन पे क्लिक कर सकते हो, तो आपका ये बिन टू बिन ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली ये दोनों ऑप्शन जो हमें वेब में पूछ रहा था वो यहाँ पे उसने मैंडेटरी करके पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एक बैच आईडी और रीजन ऐड कर सकते हो। मैं सेम एडजस्टमेंट अगर मैं वेब पे आके चेक करूं तो ये मेरे को यहाँ पर बिन टू बिन ट्रांसफर में डिटेल्स में दिखा देगा कि मैंने एक जो सीरियल स्कैन करा था वो इस बिन से इस बिन में स्कैन किया था। ग्रेट।
तो शाहरुख, हमारे सारे टाइप के एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर लिए हमने? जी सर। कोई और रह रहा है? तो कुछ और एडजस्टमेंट होते हैं, वो सिस्टम अपने एंड से करता है, वो जब हम साइकिल काउंट में वो हम चीज़ हाँ, वो देखेंगे। साइकिल काउंट में कवर करेंगे हम। राइट, राइट, ठीक है। सो गाइज, एडजस्टमेंट्स में कोई क्वेश्चन, ये क्यों कर रहे हैं, या कोई और यूज केस जो आप डिस्कस करना चाहें? Effectively, this निखिल means जी, that any movement which happens inside the warehouse should be done through the system. ऐसा नहीं कि उठा के हम कहीं भी रख देंगे। अब उठा के कहीं भी रख दिया तो वो ढूंढेंगे कैसे, वो हम उसके बारे में कल बात करेंगे साइकिल काउंट्स के अंदर। यस, यस प्लीज देविना। निखिल जी, एक क्वेश्चन था इस इंटरनल एडजस्टमेंट का यूज केस का। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, जब काफी क्वांटिटी में हमारे पास इनवर्ट शिपमेंट आता है वेंडर्स से, इट्स नॉट पॉसिबल टू सिट एंड डू अ क्वालिटी चेक ऑफ एवरी सिंगल पीस। तो उस सिचुएशन में रिलायबल वेंडर्स के साथ जिनका हिस्ट्री अच्छा है, हम एक परसेंटेज चेकिंग करते हैं, या तो 25% कर लिया या 50% कर लिया। बट इसमें क्या आता है कि बाद में जनरल वो परसेंटेज चेकिंग के हिसाब से वी मार्क द एंटायर शिपमेंट एज पास, एंड मतलब एक या दो हम बैड स्टॉक करके सबको गुड स्टॉक में ही रखते हैं, गुड प्रोडक्ट में रखते हैं। बट कभी कभी पैकिंग के वक्त या ऑर्डर प्रोसेसिंग के वक्त हमें पता लगता है कि एक पर्टिकुलर पीस में कुछ एक डिफेक्ट है। तो इज इट राइट टू यूज देन दिस टू देन इंटरनल ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम मे बी अ बैड जोन, फ्रॉम अ गुड जोन टू अ बैड जोन, एंड टू मार्क द प्रोडक्ट फ्रॉम अ गुड प्रोडक्ट टू अ बैड प्रोडक्ट? यस, दैट इज द दिस इज द ओनली वे यू कुड डू दिस। और दूसरा एक और ऑप्शन होता है, जब आपने कहा कि आप पैक कर रहे हैं तो आपको पता लगा, एक सिस्टम में फंक्शनैलिटी होती है आउटवर्ड क्यूसी की। अच्छा। आउटवर्ड क्यूसी, जब आप ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं शाहरुख, आउटवर्ड क्यूसी हमारा B2C में इनेबल्ड है या B2B में इनेबल्ड है, किसमें चलता है? सर B2C में। B2C में चलेगा, और सीरियलाइज के लिए आउटवर्ड क्यूसी चलेगा, राइट? जहाँ पे हमने कहा करेक्ट। कि ये जो मैं पीस उठा के लाया हूँ ये गड़बड़ है, तो वो ऑटोमेटिकली फिर जो क्यूसी फेल हुआ वो एक नई पिक लिस्ट या उसी पिक लिस्ट के अंदर एक और ऐड कर देता है, राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। करेक्ट। हाँ जी, तो देवेना, इसके दो तरीके हैं करने के। या तो जब आप ऑर्डर पैक कर रहे हैं B2C के अंदर, तब आपने कहा कि जो मैं उठा के लाया हूँ पीस वो गड़बड़ है, आपने वहीं पर उसको QC फेल कर दिया, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिवाइस के ऊपर एक नई पिक लिस्ट या उसी पिक लिस्ट के अंदर जो भी दोनों में से ऑप्शन होता है उसमें वो पिकिंग के लिए आइटम डाल देगा। दूसरा तरीका है कि आपने उस वाले आइटम को पिक से कैसे करेंगे शाहरुख? पिक से उसको फिर हम QC फेल करेंगे? पिक्ड से QC फेल तो कर नहीं सकते हम। नहीं सर, पिक से QC फेल नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो तो आपका रिजर्व्ड और असाइंड स्टेटस में मूव हो चुका हाँ, है। और आप क्योंकि कंफर्म कर दिया आपने, तो उसका इनवॉइस भी बन चुका है। करेक्ट, मेन आता है इनवॉइस जनरेशन के बाद। तो देखिए, लोग क्या करते हैं कि अगर आपने इनवॉइस जनरेट कर दिया है तो उसके बाद वो दूसरा पीस उठाकर लाते हैं। मैंने एक वेयरहाउस में देखा था, और दूसरे पीस को वो लेते हैं, और जो पहले सीरियल नंबर जिसके अगेंस्ट उन्होंने इनवॉइस कर दिया है, जिसको इनवॉइस कर दिया है, वो सीरियल नंबर वो दूसरे पीस पर चिपकाते हैं। एंड जो उनके हाथ में नया पीस वाला सीरियल नंबर था, वो डिफेक्टिव पीस के ऊपर चिपका के उसको बैड में मूव कर देते हैं, उसको डैमेज या रिपेयर या फ्रॉड, वॉट डैमेज या रिपेयर जिसमें भी मूव करना है उसमें मूव कर देते हैं। अगर आप आउटपुट QC नहीं करते हैं तो ये तरीका है जो मुझे समझ में आता है, कि आपने ऑर्डर भेजने के लिए नया फ्रेश पीस उठा के सीरियल नंबर दोनों के स्वैप करके आपने ऑर्डर प्रोसेस कर दिया। अब जो कहानी है कि आउटवर्ड QC हम कैसे यूज आउटवर्ड QC नहीं यूज करते हैं, तो फिर यही तरीका है आउटवर्ड पर, अगर आपको पता लग रहा है तो। हाँ, आई थिंक यही बेस्ट तरीका होगा। इस पे बस वही है ना कि अगेन वी आर मेकिंग अ मूव दैट द सिस्टम इज नॉट अवेयर ऑफ, दैट इज द ओनली ड्रॉबैक। हाँ, सिस्टम जो है, एक बार मतलब यस, दिस इज सिस्टम को तो तभी पता लगेगा जब आप बताओगे। अब सिस्टम को ये नहीं पता लगा कि पैकिंग स्टेशन पर आया हुआ पीस फॉल्टी है, वो तभी पता लगेगा जब उसको आप QC फेल करोगे आउटवर्ड QC के टाइम पे। अगर आपने स्वैप कर दिया, उसको मैनुअल स्वैप कर दिया, तो सिस्टम को कुछ नहीं पता लगेगा। फिर आप खोजते रह जाएंगे कि ये वाले इस दिन ये पीस मैंने क्यों मार्क करा था रिपेयर के अंदर या डैमेज के अंदर। करेक्ट, करेक्ट।
तो मेरा रिकमेंडेशन तो रहेगा कि आप क्यूसी करें आउटवर्ड के ऊपर। अंकित जी, अगर आप हैं तो आपके यहाँ ये केस कैसे मैनेज करते हैं? आप लोग ऐसे ही करते हैं ना कि वो स्वैप कर केस देते हैं सीरियल नंबर को? जो केस आपने बताया सेम केस, हमसे ही केस वैसे स्टडी ही बनी करते थी वो। नहीं ठीक है, तो मतलब स्वैप ही करते हो ना, और तो कुछ करते नहीं हो? आप ही करते हैं, बॉक्स जो है बिन से न्यू पीस निकाल के लाते हैं, बॉक्स चेंज करते हैं, क्योंकि सेम आरटीएन नंबर जाना चाहिए जो ऑर्डर में मैप हुआ है, और जो आरटीएन हम उठा के लाए या जो सीरियल नंबर उठा के लाए उसे अगर वो पीस ऑड है तो डैमेज में मार्क करते हैं, और अगर उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसे रिपेयर में मार्क करके एफडी के गोडाउन में रख देते हैं, फ्रेश डिफेक्टिव के पर गोडाउन में। आपके यहाँ तो ये भी केस है ना कि पैकिंग स्टेशन के बाद क्यूसी करा जाता है, पैकिंग स्टेशन हाँ, पर क्यूसी नहीं करा इनवॉइस जाता और है। लेबल निकालने के बाद। निकालने के बाद क्यूसी करा जाता है दूसरी टेबल के ऊपर। पर अगर किसी ब्रांड के अंदर पैकिंग स्टेशन पर ही क्यूसी हो रहा है तो वो वहां उसे क्यूसी फेल करके वहां स्वैप कर सकते हैं, हाँ, मतलब कर सिस्टम सकता के है। थ्रू आउटबाउंड क्यूसी कर सकते आप हैं। लोगों ने एक ऑप्शन बनाया हुआ है ना क्यूसी फेल करने का। हाँ, आउटबाउंड क्यूसी यूज कर सकते हैं। रेड टेप के केस एंड में आप लोग जो ब्रांड, इनवॉइस लेबल निकालने के बाद उसको क्यूसी करते हैं। राइट, बिकॉज हमारा पैकिंग से इमीडिएट पहले है हमारा क्यूसी स्टेशन। हाँ, मतलब प्रिंटिंग के और बाद क्यूसी फिर पैकिंग। आउटवर्ड क्यूसी, हाँ, क्यूसी देन पैकिंग, एकदम बनाया हुआ यानी कि साइमल्टेनियसली साथ साथ है दोनों टेबल। ये क्यूसी हुआ और वो लाइन आगे मूव कर दी गई। और जो ब्रांड आउटवर्ड में क्यूसी नहीं करना चाहते, इट इज बेटर फॉर देम टू डू इनवर्ड क्यूसी एंड दैट टू एट 100% लेवल। कोई हाँ। AQL नहीं लेना 10%, 20%, 25% का, 100% इनवर्ड में क्यूसी कीजिए। तो अंकित जी, यहाँ पर एक सवाल आता है, क्योंकि आप तो मल्टीपल वेयर हाउसेज में काम कर चुके हो, तो ये इनवर्ड पर क्यूसी करना फायदेमंद है या आउटवर्ड पे क्यूसी करना फायदेमंद है? जैसे देवीना जी ने बताया कि हम तो सैम्पलिंग स्टेज पर इनवर्ड पे क्यूसी करते हैं। देखिए, कॉस्मेटिक्स में सैम्पलिंग स्टेज पे क्यूसी चल जाती है, बिकॉज जो उस बॉक्स में एक बैच कोड आएगा वो एक ही बैच कोड आएगा। सो 144 या 288 पीसेस का जो बॉक्स होगा उसमें एक पीस से आप सैम्पलिंग क्यूसी करके उस पीस को या उस एसक्यू को या उतने पीसेस को आप पास कर सकते हैं। आप अगर इनवर्ड क्यूसी करने लगे तो मान लीजिए डेली का रेड टेप का एक छोटे से वेयर हाउस का 10,000 से 12,000 इनवर्ड है, इनवर्ड क्यूसी करने में आपका 2 दिन निकल जाएगा इतने पीसेस का, इसलिए हम आउटवर्ड क्यूसी करते हैं। मेरे पास इतना बड़ा स्टेजिंग एरिया नहीं है ना। हाँ, तो आउटवर्ड क्यूसी पर फिर आपको अपने इन्वेंट्री पर आउटवर्ड जो पीस रिजेक्ट हो रहा है वो गलत ना चला जाए, वो एक मैनुअल इंटरवेंशन, और वो वहां पे कंट्रोल और विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें सिस्टम कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। हाँ, सिस्टम मदद नहीं कर सकता, इसीलिए हमारे यहाँ टंग लेबल, बॉक्स शू का लेबल, उसके बाद इनवॉइस पे जो एसक्यू और आर्टिकल मिला हुआ है वो तीनों चीजें मैच की जाती हैं, और वो लाइन चलती है। ऐसा नहीं है कि 10 बॉक्स उठाए और एक साथ रख दिए, वो 1 बाय 1 लाइन चलती रहती है, तो इसमें मिसमैच होने का भी डर नहीं है कि इनवॉइस रिप्लेस। चेन सिस्टम चलता है। हाँ, चेन सिस्टम चला रखा है, डोल सिस्टम चलाया हुआ है। ठीक है, ठीक है guys, any questions on to this? I think Devina ji, you asked a very very valid and a very very important question. किस तरीके से आप करें, यही तरीका है। आप इनवर्ड पर सब लोग क्यूसी नहीं कर सकते, आउटवर्ड पर अगर आप पैकिंग स्टेशन पर ही क्यूसी कर रहे हैं तो सिस्टम आपकी मदद कर सकता है। बट अगर आपने पैक लेबल इनवॉइस प्रिंट करने के बाद आप क्यूसी कर रहे हैं तो सिस्टम आपकी मदद नहीं कर सकता, फिर आपको मैनुअली उसको मैनेज करना पड़ेगा। Right. I think I have to just do a little bit more research कि बाकी क्लोथिंग ब्रांड्स कैसे करते हैं। मैं आउटवर्ड में ही समझ में आ रहा है, बिकॉज इनवर्ड में इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू क्यूसी ऑन सच अ लार्ज क्वांटिटी। जैसे अंकित जी ने बोला 2-3 दिन तो कहीं नहीं गए, वो ऐसे ही फिर वो माल पड़ा रहा वेयर हाउस में। देखिए, मेरा भी वेयर हाउस था, मैं भी फैक्ट्री जब हाँ जी निखिल जी, प्लीज। स्टार्टेड डूइंग इनवर्ड क्यूसी। जो भी हमारा जितना भी लोकली मेड हमारा स्पोर्ट्स वियर था या गारमेंट भी था, वी स्टार्टेड डूइंग क्यूसी। जो आज हम 12 घंटे 16 घंटे में जो इनवर्ड कर रहे थे, दैट वाज एक्सीडेड टू 48 आवर्स। फिर हमने आउटवर्ड क्यूसी करना शुरू किया। आउटवर्ड क्यूसी में क्या होगा, आपका 2000 पीस अगर मान लीजिए गारमेंट आप निकाल रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 पीस ऐसा होगा जो क्यूसी रिजेक्ट होगा। दैट इज मैनेजेबल, क्योंकि आपको इन्वेंट्री ऑलरेडी साइड करके रख रहे हैं फॉर द ऑडिट पर्पस। देखिए, मैं अभी अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। नहीं, फैक्ट्री से इतना मटेरियल रिजेक्ट आता नहीं है। नहीं है, मैं भी सेम बात कहने लगा था। पुल बैक में देयर इज इशू, जो स्टोर से या होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूशन से अगर जो पुल बैक आता है, देयर इज इशू, क्योंकि वो 10-10 दिन 20-20 दिन 1-1 महीना स्टोर में मटेरियल हैंगर्स पे हैंग हुआ रहता है, तो उसमें थोड़ा इशू है। जो फ्रेश इनवर्ड आता है उसमें आपको इशू नहीं आता है, खासकर फैक्ट्री से वाले।
हाँ, यहाँ पर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। जब मैं अपनी अपैरल्स की फैक्ट्री चलाता था, जब फुल फ्लैज अपैरल की फैक्ट्री चलती थी, तो जब लाइन से माल उतरना है, पैकिंग होनी है, जब प्रेस होने के बाद उसका, प्रेस होने से पहले क्यूसी होना है, प्रेस होने के बाद पैकिंग करते वक्त भी जो फोल्डिंग कर रहा है लड़का, उसने भी उसका क्यूसी करके ही फाइनल पैकेजिंग में पैक करना है। तो जो मेरे बिन्स के अंदर या मेरे वेयरहाउस के अंदर जो मटेरियल जाता होता था, उसके अंदर क्यूसी गलत पीस जाना या रिजेक्टेड पीस जाना एक बहुत रेयर केस होता था। अब आउटवर्ड के ऊपर क्यूसी करने की जरूरत इसलिए पड़ती थी कि आपकी, मानिए कि किसी आइटम की पड़े पड़े दबने के बाद प्रेस खराब हो गई है, या फिर उसको चेक करना है कि ज्यादा पुराना हो गया तो हीट ट्रांसफर कहीं उसका गड़बड़ तो नहीं हो गया है, एंड या फिर एक आपने फाइनल नजर दौड़ा ली कि कहीं से कोई पीछे से क्यूसी की वाले की गलती है, तो कोई सुराख या कुछ और धागे तो नहीं लटके रह गए हैं। तो एक प्रिकॉशनरी क्यूसी होता था, होता है अभी भी, आउटवर्ड क्यूसी के ऊपर अपैरल्स में, एंड इनवर्ड के ऊपर हम ट्रस्ट करते थे कि भैया जो मेरे फैक्ट्री से क्यूसी होके बाहर आ रहा है मटेरियल, दे हैव गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट, के वहां पे हमारा क्यूसी गड़बड़ नहीं होना है। तो ये हम लेके चलते थे अपैरल्स के अंदर। बट अगेन एक और चीज मैटर करती है कि आपकी फैक्ट्री इन हाउस है कि नहीं है, या आपकी लेट्स से दूसरे शहर में भी है फैक्ट्री बट आपकी खुद की फैक्ट्री के, अगर आप वेंडर से मंगवा रहे हैं तो केसेस जो हैं ज्यादा आते हैं। अ ब्रांड इन जयपुर, दे डू 100% इनवर्ड क्यूसी, क्योंकि वो कपड़ा देके वेंडर से मटेरियल मैन्युफैक्चर करवाते हैं। वो कहते हैं कि हमको रिजेक्शन वहीं के वहीं रोकनी है, हमको आगे जाने ही नहीं देनी है। तो ये केसेस हैं जहां पर मेरी जो नॉलेज है इस तरीके से काम हो रहा है। आई होप इट इज इट्स हेल्पिंग आउट पीपल। देविना जी, आई होप वी वर एबल टू address what you were asking for. Definitely, Nikhil ji, got two very insightful perspectives. Thank you so much. Great. Guys, anything निखिल else? सर, Yes, Hina. हाँ, जैसे कि हमारा भी फुटवेयर है, तो अभी कैसा रहता है, पैकेजिंग के टाइम पे हमारा क्यूसी होता है। हमारा 2 टाइम क्यूसी होता है, एक इनवर्ट के टाइमिंग पे होता है और एक पैकेजिंग के टाइम पे। हमारा कैसा रहता है, कभी कभी हमारे प्रोडक्ट्स में मिसमैच होते हैं, जिसके अगर बारकोडिंग लगा हुआ है उस पे 6 साइज का, बट प्रोडक्ट अंदर है 5 नंबर का। तो ये केसेस में हम क्या कर सकते हैं, हम लोग मोस्टली कैसा करते हैं, अगर उसमें नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, वो दूसरे शेल्विंग से उठा के वो ऑर्डर को शिप कर देते हैं। बट जो ऑलरेडी सीरियल नंबर रिजर्व हुआ है वो तो ऐसे पेंडिंग रहता है हमारा, और जो हम एक नया उठा लेते हैं उसको तो हम लोग डिस्कार्ड मार्क कर देते हैं, इन्वेंट्री से रिमूव कर देते हैं। तो फिर जब न्यू बचता है, जिसकी आप समझ रहे हो ना, उसको आप दोबारा जीआरएन कर दीजिए, जो एग्जैक्ट यस प्रोडक्ट वही करते हैं हम, वही करते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस है? दीज आर वेरी रेयर चांसेस, बिकॉज एक प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट फैक्ट्री में मटेरियल प्रिपेयर होता है, और उस फैक्ट्री में मटेरियल प्रिपेयर होने के बाद उसकी क्यूसी होने के बाद वो मटेरियल डिस्पैच होता है। तो 0.0001% चांसेस ऐसे हैं कि बॉक्स के अंदर आर्टिकल कुछ और है और बॉक्स के बाहर कुछ और ईएन लगा हुआ है। तो हमें मतलब उसको करेक्ट करने के बाद उसका न्यू जीआरए नहीं करना है। उससे क्या होगा, आपका जो बैड इन्वेंट्री में मूव होना था वो पीस आपका फ्रेश इन्वेंट्री में मूव हो गया, फ्रेश इन्वेंट्री में मूव होना पड़ेगा। आर्टिकल आपका चेंज हो गया। बट हमारा एक सीरियल नंबर तो एक्स्ट्रा गया ना, जो रिजर्व हुआ था वो तो नहीं गया, पर सेल हमारा वो दिखाएगा, बट जो एक्स्ट्रा पीस हमने उठाया उसके रिप्लेसमेंट पे वो तो डिस्कार्ड दिखाएगा। तो इसके अलावा कुछ ऐसा पॉइंट है? डिस्कार्ड इज योर टर्मिनल इन्वेंट्री। हम्म, डिस्कार्ड इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्वेंट्री, टर्मिनल इन्वेंट्री है। डिस्कार्ड की इन्वेंट्री को हम लोग, तो उसके लिए मैं कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ इन केसेस में? हम भी उसे डिस्कार्ड ही मार्क करते हैं मैम, और डिस्कार्ड मार्क करने के बाद अपनी अकाउंट्स टीम और फाइनेंस टीम को बताते हैं कि ये आर्टिकल जो है क्यूसी फेल है और ये सिनेरियो है, और फिर हम उसे एसएपी में भी चेंज कराते हैं। ओके, हाँ, एसएपी हम भी यही प्रोसेस इज ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, लोगों के बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो थैंक यू। ग्रेट गाइस। सो किसी का और क्वेश्चन? हम किस तरीके से इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, देखिए इन्वेंट्री एडजस्टमेंट आपकी वेयरहाउस हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। किसी का कोई और सवाल, और शैल वी रैप अप टुडेज क्लास?
I think everything's sorted out. So thank you for joining in today. Tomorrow we will connect again on at 2:30 p.m. itself, and we'll talk about cycle counts. And cycle counts is a very very important aspect. मिस मत कीजिएगा क्लास, 2-4 पड़ोसियों को और पकड़ के ले आइएगा, साथ में बिठा लीजिएगा। मेरे हिसाब से साइकिल काउंट अगर सही तरीके से करा जाए तो आपके वेयरहाउस की कायाकल्प कर सकता है। थैंक यू, बाय बाय।